السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ہم لوگ فعل ماضی کو پڑھ رہے تھے۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں؟ فعل ماضی کی 6 قسمیں تھیں۔ کتنی قسمیں تھیں؟ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ۔ اس کا 2 نام ہے، ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ۔ نمبر 6 ماضی تمنائی۔ تو دوستو، آئیے ہم لکھ لیتے ہیں فعل ماضی کی قسمیں۔ ہیڈنگ کیجیے، فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی کتنی قسمیں تھیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، ماضی مطلق۔ نمبر 2 ماضی قریب، ماضی قریب۔ نمبر 3 ماضی بعید۔ نمبر 4 ماضی استمراری، ماضی استمراری۔ نمبر 5 ماضی احتمالی، یا ماضی شکیہ یعنی شکی۔ نمبر 6 ماضی تمنائی، دیکھیے فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ۔ اس کا مطلب آتا ہے یا، یہ لکیر جو ہے اس کو یا کہتے ہیں، ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ۔ اس کا 2 نام ہے، ایک نام احتمالی یا دوسرا نام شکیہ۔ اس کو اس طرح سے دیکھیے، ایگزام میں اس کو اس طرح سے بھی دے سکتا ہے، مان لیجئے ایک ایگزامپل دے گا آپ کو، ماضی احتمالی یا ماضی شکیہ کا دے دے گا زید آیا۔ ایگزامپل دے رہے ہیں، بھی پڑھائیں گے، بھی تھوڑا مطلب اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اس کا نام آیا ہوگا، زید آیا ہوگا۔ آپ کو دے دے گا کہ اس میں ماضی احتمالی کون سا ہے؟ ماضی احتمالی یہ ہوگا جو ہے، یہ ماضی احتمالی ہے۔ کیا ہے؟ ماضی احتمالی ہے۔ کیا ہے؟ ماضی احتمالی۔ اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے، یا نہیں تو کہے گا ماضی شکیہ کون سا ہے، تو یہ بھی یہی ہوگا، ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، اسی کو کہتے ہیں ماضی شکیہ۔ دیکھیے نا، اس میں شک ہو رہا ہے، آیا ہوگا، یہ پرفیکٹ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں آیا ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ آیا ہوگا۔ اس میں شک ہے، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے، اس میں پورا کنفرم پتہ نہیں ہے، تو اسی وجہ سے شک ہے اس میں، اسی وجہ سے اس کو شکیہ بھی کہتے ہیں۔ احتمالی مطلب احتمال ہے، شاید وہ آیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی آیا ہوگا۔ تو کہنے کا سینس یا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی احتمالی کا 2 نام ہے، دوسرا نام کیا ہے؟ شکیہ۔ ایک ماضی احتمالی، دوسرا ماضی شکیہ۔ آئیے ایک طرح سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر جب اس کا پریبھاشا، جب اس کی تعریف ہو جائے گی تو
इंशाअल्लाह अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। माजी मुतलक किसे कहते हैं, हीडिंग कर दीजिए थोड़ा, माजी मुतलक परिभाषा उसका। अगर आप इसको परिभाषित करना चाहेंगे, इसकी तारीफ करना चाहेंगे, तो इसको इस तरह से तारीफ कर सकते हैं, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए माजी मुतलक। अच्छा अब आप लोग बताइए, फेल माजी को तो आप लोग पढ़े होंगे, फेल माजी को अच्छी तरह से हम लोग पिछले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो को, तो जा करके पहले पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। माजी मुतलक फेल माजी को आप पढ़ चुके हैं। क्या है फेल माजी? फेल माजी वह फेल है जिसमें किसी काम के करने या होना गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, किसी काम का करना या होना कहाँ मालूम हो? गुजरे हुए जमाने में मालूम हो, उसे फेल माजी कहते हैं। तो माजी है ये, क्या है? माजी मुतलक। मुतलक देखिए नाम से ही पता चल रहा है माजी मुतलक क्या होगा। माजी मुतलक वह फेल है, माजी मुतलक फिर से एक मर्तबा, माजी मुतलक वह फेल है जिससे किसी काम के करने या होने की गुजरे हुए जमाने में खबर मिले। नहीं समझ में आया? देखिए फिर से मर्तबा, माजी मुतलक वह फेल है जिससे किसी काम के करना या होना गुजरे हुए जमाने में खबर मिले, यानी वो काम गुजरा हुआ जमाना में हुआ है लेकिन यह पता न चले कि वो काम के होने से देर हुई हो या अभी अभी हुआ है। कहने का मतलब यह हुआ कि माजी मुतलक वो फेल माजी है जिससे किसी काम के करने या होना गुजरे हुए जमाने में पता चले लेकिन यह पता न चले काम का खत्म होने से देर हुई हो या काम अभी हुआ है। तो आइए लिख लेते हैं, इसको परिभाषा लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। माजी मुतलक वह फेल है, माजी मुतलक वह फेल है, वह फेल है जिससे किसी काम का, जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाना में चले, जमाना में चले। माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाना में चले। मतलब यह हुआ माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाने में चले लेकिन यह पता न चले, लेकिन यह पता न चले, लेकिन यह पता न चले कि वह काम को खत्म होने से देर हुई हो या वह काम अभी खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है। देखिए माजी मुतलक क्या है? माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाना में चले लेकिन यह पता न चले कि वो काम को खत्म होने से देर हुई हो या वो काम अभी खत्म हुआ है। मतलब यह पता न चले काम को खत्म होने से कितनी देर हुई हो, ज्यादा देर हो गई है या अभी अभी खत्म हुआ है, यह पता नहीं चल रहा है, उसी को माजी मुतलक कहते हैं। फिर से एक मर्तबा, माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाना में चले लेकिन यह पता न चले कि वो काम को खत्म होने से देर हुई हो या वो काम अभी खत्म हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, जैसे जैद आया,
और वह खाया। देखिए इसमें ये पता चल रहा है जैद आया, कब आया? आया तो माजी में आया, गुजरे हुए जमानों में आया, लेकिन कितनी देर हुआ ये पता चल रहा है, कितना वक्त हुआ इसका आने से, वक्त का पता नहीं चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि फेल माजी मुतलक वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाने में चले, लेकिन यह पता न चले कि वह काम को खत्म होने से देर हुई हो या वह काम अभी खत्म हुआ है। जैसे जैद आया और वह खाया, पता नहीं चल रहा है कि वह काम अभी हुआ है या उस काम का होते हुए 1 घंटा हो गया है, यह पता नहीं चल रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोग माजी मुतलक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नोट करके लिख लीजिए, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नोट लिखिए, नोट मस्दर की अलामत, मस्दर की अलामत ना को हटाकर, मस्दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाने से माजी मुतलब बन जाता है, 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 माजी मुतलब बन जाता है। जैसे 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 देख लीजिए हम लोग, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये क्या है? एक मस्दर है। क्या क्या कहा? मस्दर की अलामत ना को, मस्दर की अलामत कौन सा है? ना। उर्दू में मस्दर की अलामत आता है ना, जिसके आखिर में ना हो उसको मस्दर कहते हैं। तो देखिए पढ़ना मस्दर की, क्या कहा यहाँ? मस्दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाने से माजी मुतलक बन जाता है। जैसे मस्दर की अलामत कौन है यहाँ? ना को हटाइए, जैसे पढ़ना से पढ़ा, पढ़ना से पढ़ा, पढ़ना का माजी मतलब क्या होगा? पढ़ा होगा। पढ़ना से पढ़ा, पढ़ना से पढ़ा, मतलब क्या हुआ? ना को हटाए, ना को हटाने के बाद उसके आखिर में अलिफ को बढ़ा दिए तो ये माजी मुतलक बन गया। दूसरा देखिए, जैद आया, जैद आया, जैद आया, इसका मस्दर क्या था? जैद आना, जैद आना, इसका मस्दर क्या होगा? जैद आना। तो जैद आया, आना से क्या हो गया? आया। इसको छोड़िए, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे खाना, खाना, ये भी एक मस्दर है। खाना जो है एक मस्दर है। खाना क्या है? मस्दर है। खाना, खाना से खाया, खाना से खाया। देखिए मस्दर की अलामत ना को हटाकर, मस्दर की अलामत ना को हटाकर अलिफ या को बढ़ाते हैं, या और कभी अलिफ को, ज्यादातर या को बढ़ाते हैं लेकिन कभी कभी अलिफ को भी बढ़ाते हैं। जैसे खाना से खाया, दौड़ना से दौड़ा, समझे? कभी अलिफ को बढ़ाते हैं, कभी या को बढ़ाते हैं। तो मस्दर नोट समझ में आया था होगा आप लोगों को। नोट, मस्दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ, मस्दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाने से माजी मुतलक बन जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़ा, खाना से खाया, दौड़ना से दौड़ा वगैरह। लिख लीजिए आप लोग, वगैरह।
उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्दर की अलामत ना को हटाकर या और कभी अलिफ बढ़ाने से माजी मुतलक बन जाता है, माजी मुतलक बनाने का तरीका अच्छी तरह से सीख गए होंगे। माजी मुतलक बनाने का तरीका अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अगर कोई आपको कोई लफ्ज दे दे मस्दर का और आपको बोले कि आप इसको माजी मुतलक बनाइए, तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? हम देते हैं आपको। मान लीजिए दौड़ना, दौड़ दौड़ दौड़ना, इसका माजी मुतलक बनाइए तो दौड़ने से दौड़ा, दौड़ने से दौड़ा। नोट याद रहेगा तो बन जाएगा। मस्दर की अलामत ना को इसको हटाइए, इसको हटाने के बाद क्या जोड़ना है, चाहे या जोड़िए या अलिफ जोड़िए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ अलिफ लगेगा कहाँ या लगेगा उसको समझ करके लगाना है। दौड़ना ना को हटाइए, उसके बदले में अलिफ को बिठाइए, तो दौड़ना से दौड़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्दर की अलामत क्या कहते हैं माजी मुतलक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और माजी मुतलक बनाने का तरीका भी सीख गए होंगे। अब आइए माजी करीब को थोड़ा पढ़ लेते हैं। माजी करीब को थोड़ा पढ़ लेते हैं। माजी करीब क्या है? माजी करीब, माजी करीब, माजी करीब देखिए ये पता जो इसका नाम से इसका परिभाषा पता चल रहा है। माजी करीब, माजी बता चुके हैं, गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। करीब का मतलब नजदीक, मतलब इसका परिभाषा किस तरह से कह सकते हैं? वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाने में चले। माजी मतलब क्या था? लेकिन यह पता न चले, लेकिन यह पता न चले कि वो काम को खत्म होने से देर हुई हो या काम अभी खत्म हुआ हो। ये तो माजी मुतलक था, लेकिन माजी करीब को क्या कहेंगे? यहां तक तो सेम है, यहां तक। वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाने में चले और साथ ही ये पता भी चले कि वो काम अभी ही खत्म हुआ है, वो काम अभी ही खत्म हुआ है। चलिए लिख लीजिए, वह फेल है, वह फेल है, वह फेल है जिससे 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 किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमाना में चले और साथ ही साथ यह भी पता चले कि वह काम अभी खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है। जैसे ज़ैद आया है, ज़ैद आया है। देखिए माज़ी करीब क्या है? वो फेल है जिससे किसी काम के होने का पता गुजरे हुए जमानों में तो चले और साथ ही साथ यह भी पता चले कि वह काम अभी ही खत्म हुआ है, वह काम अभी ही खत्म हुआ है। जैसे ज़ैद आया है, ज़ैद आया है, वह खाना खाया है, वो सोया है, वो पिया है, वगैरह वगैरह। तो एक नोट और भी लिख लीजिए माज़ी करीब का नोट, माज़ी करीब बनाने का कायदा या नोट क्या है? देखिए माज़ी मुतलक के आखिर में है या है लगा देने से वो माज़ी करीब बन जाता है। माज़ी मुतलक के आखिर में है या है लगा देने से वो माज़ी करीब बन जाता है। माज़ी मुतलक के आखिर में, माज़ी मुतलक के आखिर में है या है लगाने से, माज़ी मुतलक के आखिर में है या है लगाने से
माजी करीब बन जाता है, माजी करीब बन जाता है। जैसे, जैसे जैद आया से जैद आया है, जैद आया से जैद आया है। देखिए जैद आया ये माजी मुतलक था, लेकिन जैद आया है ये माजी करीब हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोग फेल माजी की 6 किस्मों में से 2 किस्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नंबर 1 माजी मुतलक को और नंबर 2 माजी करीब को। और माजी मुतलक बनाने का कायदा भी आप समझ गए होंगे, माजी करीब बनाने का कायदा भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज का क्लास यहीं पर रोक रहा हूं, नमाज का वक्त हो जाता होगा, शायद हो गया है, नमाज का वक्त भी हो गया है, तो क्लास को यहीं रोक रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।